Hello everyone. Hope you all are doing well. So welcome to our next video lecture. Today we are going to discuss about the topic work, energy and power. And in this topic we are going to discuss one of the most important subtopics which is work energy theorem. So without using much of the time, let's move ahead. What are the goals of today? We'll be able to learn about the work energy equation, which is one of the most important equations. And there have been many questions in past in your competitive exams, which is JEE mains and advanced both. Conservation of mechanical energy, which is a special case of this work energy theorem only, right? Work energy equation. Then we'll move on to the problems and PYQs based on this topic. So we are assuming that you already have a prior knowledge of these topics so that you can gain the best out of this current lecture. If you have not gone through these topics previously, please go through the topics in the playlist already available on the channel. Otherwise, if you want to see this lecture, you can see, because we are going to anyways cover all this in a nutshell, in a summarized manner in this lecture also. First is conservative and non-conservative forces. You must have a knowledge about this. Work done by forces, kinetic energy, potential energy, this also we must know. Laws of motion and circular motion, this is the previous chapter. And some mathematical tools including differentiation, integration and vectors, this also we must have a knowledge of. Alright, so let's move ahead and check some real life examples where we are going to apply work energy theorem and we'll get the answers very easy. The first example given here is a vertical circular loop. It is a vertical circular motion. अभी तक देखो हमने क्या पढ़ा था, अभी तक हमने कुछ इस तरीके का सेटअप पढ़ा था, ठीक है. Say for example, this is a person and he is holding a string which is attached to a ball and he is rotating this in a horizontal circle. ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल सर्कल में इसको रोटेट कर रहा है. अगर मैं इस पर फोर्सेस की बात करूं तो एक फोर्स का कंपोनेंट कहां लूंगा मैं, टुवर्ड्स द सेंटर, जिसे मैं कहूंगा सेंट्रीपिटल फोर्स. इससे रिलेटेड एक्सेलरेशन को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का नाम देते हैं हम. और एक फोर्स जाएगा टुवर्ड्स द टेंजेंट, जिसको हम टेंजेंशियल फोर्स, और उससे रिलेटेड एक्सेलरेशन को टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलते हैं. ठीक है, इसमें एक खास बात ये थी कि ये जो लूप बन रहा है इसमें, यानी कि जो सर्कल बन रहा है वो एक प्लेन में था. ठीक है, इट इज इन अ प्लेन समवट लाइक दिस, बट प्लेन में तो यहां भी होगा, वर्टिकल में भी. बट इसमें एक खास बात क्या है, देखो mg की खास बात आती है इसमें. mg फोर्स कहां एक्ट कर रहा है, परपेंडिकुलरली आउट ऑफ दिस प्लेन. ठीक है, ये दोनों ही फोर्सेस से कैसा एंगल कैरी कर रहा है, 90 डिग्री का एंगल. ठीक है ना, ये अगर प्लेन है सर्कल का और mg कहां एक्ट कर रहा है इस बॉडी पर, हमेशा डाउनवर्ड्स, यानी कि इस प्लेन से बिल्कुल ही बाहर, तो हमेशा 90 डिग्री एंगल है इसका. तो सर्कुलर मोशन में इस mg का कंपोनेंट अगर मैं लेता हूं सेंटर की तरफ या टेंजेंट की तरफ, दोनों ही कंपोनेंट्स कैसे आ जाएंगे, cos 90, जो कि हमें वैल्यू दे देंगे फाइनली 0. यानी कि इस mg का इस सर्कुलर मोशन में कोई भी इंपैक्ट नहीं था. राइट, अब क्या होने वाला है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में ऐसा नहीं होगा. वर्टिकल सर्कुलर मोशन में mg का एक इंपैक्ट मिलेगा हमें. से फॉर एग्जांपल the object is somewhere here in this vertical circular motion and it is making an angle theta. यहां पर अगर मैं बात करता हूं mg फोर्स की, यहां पर अगर mg फोर्स की हम बात करते हैं तो आप बताएंगे सर हाँ mg फोर्स यहां पर भी वर्टिकली डाउनवर्ड्स एक्ट कर रहा है एट एनी पॉइंट. यहां पर अगर मैं देखूंगा तो भी वर्टिकली डाउनवर्ड्स, यहां भी. तो इस पॉइंट पर मैंने बात करी. अगर मैं इस mg का फिर से लेता हूं रेडियल और टेंजेंशियल कंपोनेंट्स, रेडियल और टेंजेंशियल कंपोनेंट्स लेते हैं, एक डार्क कलर का पेन चूज करते हैं. राइट, तो आप क्या बताओगे कि हाँ सर चलो ठीक है, पहले एंगल निकाल लो, कोई बात नहीं. ये एंगल अगर थीटा है वर्टिकल से, तो क्या ये एंगल भी थीटा होगा, बिल्कुल ठीक है सर. इस mg का कंपोनेंट रेडियली क्या मिलता है मुझे इसके लिए, mg cos थीटा, और टेंजेंशियल कंपोनेंट क्या मिल जाता है यहां पर, mg sin थीटा. अब ये थीटा, इस थीटा की अगर मैं बात करूं, ये थीटा क्या है, देखो पूरे वर्टिकल सर्कुलर मोशन में वेरिंग है, यानी कि mg के दोनों कंपोनेंट्स हमेशा वेरी करेंगे एट एवरी पॉइंट. ऐसे केसेस में न्यूटन लॉज ऑफ मोशन से हमें अगर ये सॉल्व करना है काइनेमेटिक इक्वेशन से या न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, तो थोड़ा सा डिफिकल्टी आते हैं. इस केस में अगर हम वर्क एनर्जी रिलेशन का यूज करेंगे देन वी विल श्योरली बी एबल टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स. तो ऐसे प्रॉब्लम्स हमें काम आती है वर्क एनर्जी रिलेशन. सेकंड एग्जांपल यहां पर हमें दिया है बो एंड एरो. ठीक है, अगर हम अपने बो में एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करते हैं, ठीक है, हम इसे स्ट्रेच बैक कर रहे हैं, ठीक है, और ये इलास्टिक होगा, ठीक है, तो इसमें एक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी, और जब हम इसे रिलीज करेंगे तो ये पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी में, और जो एरो है हमारा एक बहुत अच्छी स्पीड से आगे शूट हो जाएगा. ठीक है, तो ये हमारा मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का कांसेप्ट भी यहां पर यूज होने वाला है. यही वर्क एनर्जी रिलेशन का ही एक स्पेशल केस होता है मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन. सिमिलरली अगर हमारा जो पाथ है, यानी कि जो ट्रैक है,
वो इरेगुलर है, इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, है ना, तो इन केसेस में भी हमारा काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन डेवलप हो जाता है और हम बहुत इजीली इन तरीके इन क्वेश्चंस को भी हम इजीली सॉल्व कर पाते हैं और ऐसी सिचुएशंस को रियल लाइफ में भी हम डील कर सकते हैं। इसी तरीके से स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में एक स्प्रिंग में भी देखो एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। अभी हम पढ़कर आए हैं, है ना, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में हमने देखा कि स्प्रिंग फोर्स जो है वो एक कंजर्वेटिव टाइप का फोर्स है, क्योंकि इससे रिलेटेड हम एक पोटेंशियल एनर्जी डिराइव कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, अगर हम इसे कंप्रेस करेंगे तो ये इलोंगेट होने के लिए एक टेंडेंसी रखता है, यानी कि इट हैज स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी व्हिच विल कन्वर्ट इनटू अ काइनेटिक एनर्जी, और इस ब्लॉक को एक काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी अगर ये स्प्रिंग से अटैच है। तो इन तरीके के क्वेश्चंस में भी हम लोग वर्क एनर्जी रिलेशन का यूज करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज करेंगे और बहुत इजीली इसको आगे हम पिकअप करने वाले हैं। Okay, so let's move ahead to work energy theorem. We were waiting for this. So, work done by all the forces acting on a body. क्या statement है देखो, work done by all the forces acting on the body is equal to the change in kinetic energy of the body. ठीक है, ये statement जो कह रहा है उसको थोड़ा सा मैथमेटिकली लिख लेते हैं हम। Work done by all forces is equal to change in kinetic energy of the body. ठीक है, जो वर्क एनर्जी थ्योरम है वो हमें कुछ इस तरीके से स्टेट कर देता है कि भाई टोटल वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब है क्या, इसके प्रूफ की हम बात करते हैं। ठीक है, लेट अस टॉक अबाउट इट्स प्रूफ। क्या प्रूफ है भाई, ठीक है, स्टेटमेंट लिख लिया हमने, बट कैसे प्रूव करा जाए इसको। तो अब मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं बेटा, मोस्ट ऑफ द कंटेंट दैट यू विल फाइंड फ्रॉम मोस्ट ऑफ द सोर्सेज, कुछ बुक्स में भी ऐसा होगा कि आपको जो ये डेरिवेशन इसका मिलेगा वो मिलेगा एक स्ट्रेट लाइन के लिए। ठीक है, से फॉर एग्जांपल मैं एक यहाँ पर रफली आपको बताता हूं कि क्या होने वाला है। फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के लिए क्या होता है भाई, ये ट्रू हो जाता है। कैसे, से फॉर एग्जांपल दिस इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m एंड वी अप्लाई अ फोर्स F एंड दिस ऑब्जेक्ट मूव्स हियर, रीचेस हियर। इसकी यहाँ पर इनिशियली वेलोसिटी v1 थी और यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो गई v2। इसके पाथ में से हमने कुछ एलिमेंट ले लिया ds नाम का, है ना, और इस एलिमेंट के लिए हमने बात करा वर्क का, तो क्या होगा भाई, dw हमें सबको पता है, वर्क इज इक्वल्स टू f वेक्टर डॉट ds वेक्टर। इस ds पर होने वाला छोटा सा वर्क कुछ इस तरीके से डिनोट हो जाएगा, यहाँ पर भी वेक्टर आएगा। ऑलराइट, तो अगर मैं इसको भाई स्केलर फॉर्म में लिखता हूं, है ना, तो क्या करूंगा मैं, इस डॉट प्रोडक्ट को ओपन करके f डॉट ds cos थीटा, f ds cos थीटा लिखूंगा इसको। तो भाई यहाँ पर f ds cos थीटा ना कंसिडर करके मोस्ट ऑफ द कंटेंट जो आप देखोगे उसमें क्या करते हैं, cos थीटा को यहाँ से रिमूव कर देते हैं और कहते हैं कि भाई ये स्ट्रेट लाइन मोशन है, तो f और ds के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री। तो cos ऑफ 0 डिग्री विल बी 1, यानी कि मेरे को फाइनली क्या मिल जाएगा यहाँ पर, dw इज इक्वल्स टू f ds, कोई डॉट प्रोडक्ट नहीं है। अब क्या रह जाता है भाई इस थ्योरम में, फाइनली dw इज इक्वल टू फोर्स को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू ds। एक्सेलरेशन को किससे रिप्लेस कर सकते हैं भाई हम, मास इनटू v dv बाय ds, ये सबको पता है। फिर क्या करते हैं, यहाँ पर ds से ds को कैंसिल करते हैं और वर्क डन को हम लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ m v dv वेरिंग फ्रॉम v1 टू v2, v1 से लेकर v2 तक कितना चेंज आया वेलोसिटी में भी मिल जाएगा। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं इसके बाद, वर्क डन इज इक्वल्स टू मास इज अ कांस्टेंट, इट कम्स आउट ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, बॉडी का मास हमने माना है कि कांस्टेंट है, v dv फ्रॉम v1 टू v2, और यहां से मुझे वर्क डन मिल जाता है हाफ m v2 स्क्वायर माइनस हाफ m v1 स्क्वायर and this is equals to change in kinetic energy. ठीक है, तो work done by all the forces comes out to be equal to change in kinetic energy. We have proved this theorem for a straight line. ठीक है, एक straight line के लिए हमने इसे प्रूव करा है। तो do we have any right to apply this theorem on a path like this? क्या इस तरीके के पाथ पे हमें इस थ्योरम को अप्लाई करने का कोई भी राइट है? बिल्कुल नहीं है भाई, हमने प्रूव तो उसके लिए किया है। तो इस तरीके के पाथ के लिए हमें प्रूव करना है, उसके लिए क्या करना चाहिए? ठीक है, मैंने इसमें लिख दिया है फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, इसको लिखे रहने देते हैं, कोई बात नहीं। तो लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट पेज एंड अंडरस्टैंड कि इसको एक
इर्रेगुलर पाथ के लिए हम लोग कैसे देख सकते हैं। ओके, सो लेट अस क्विकली चेक हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस जॉब, है ना। देखते हैं भाई, एक इर्रेगुलर पाथ बना लेते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके का इर्रेगुलर पाथ है। एंड से फॉर एग्जांपल अ ब्लॉक ऑफ मास m इज प्लेस्ड हियर एंड इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। इसको हम लोग कुछ इस तरीके से दिखाते हैं। इसकी वेलोसिटी कहाँ है, अलोंग द ट्रैक है ना। और इसका ds जो होगा वो भी इसी ट्रैक के अलोंग पर हमें दिखाई देने वाला है, ठीक है। इस पर कुछ फोर्सेस अप्लाई कर देते हैं भाई, इस पर कुछ फोर्सेस लगा देते हैं। से फॉर एग्जांपल एक F1 फोर्स इस दिशा में लग रहा है, F2 फोर्स इज बीइंग अप्लाइड हियर समवेयर, F3 इज बीइंग अप्लाइड हियर समवेयर, राइट। इतने सारे फोर्सेस, n नंबर ऑफ फोर्सेस इस ब्लॉक पर लग सकते हैं, ठीक है भाई। तो हमने एक स्टेटमेंट लिखा यहां पर, इन फोर्सेस का वो कंपोनेंट, इन फोर्सेस का वो कंपोनेंट स्पीड को बढ़ाएगा या घटाएगा जो इसकी वेलोसिटी की दिशा में होगा, राइट। लिखते हैं इसको, फिर समझते हैं क्या लिख रहे हैं हम। द कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस along v vector will provide acceleration tangential, ठीक है। at किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, स्पीड को चेंज करने के लिए। will provide tangential acceleration which shall change the speed of object and other components will be responsible for changing the direction, ठीक है भाई। फोर्स के वो कंपोनेंट्स, चलो एक काम करते हैं, थीटा एंगल भी ले लेते हैं इनके बीच का। वेलोसिटी और फोर्स F1 के बीच में θ1, इसके बीच में θ2, इसके बीच में θ3। समझ में आ रही है भाई ये बात, ये θ1 θ2 इनके बीच के एंगल्स भी हो गए, ठीक है। तो हमने कहा फोर्स का वो कंपोनेंट जो इस वेलोसिटी के अलोंग है वही इसकी स्पीड को बदलेगा, और जो बाकी कंपोनेंट है यानी कि जो इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा वो इसकी स्पीड की यानी कि इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन को बदलने में काम करेगा। चलिए, तो इस चीज को भाई मैथमेटिकली लिखना शुरू करते हैं। कैसे लिखा जाएगा, हम लिखते हैं भाई F1 cos θ1, ये इसका कंपोनेंट आया टुवर्ड्स द वेलोसिटी, प्लस F2 cos θ2 ये सेकेंड फोर्स का आया, प्लस F3 cos θ3 इज इक्वल्स टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू एक्सीलरेशन। और ये एक्सीलरेशन कैसा होगा, टेंजेंशियल, क्योंकि हमने कौन से कंपोनेंट्स लिए हैं, फोर्स के अलोंग द वेलोसिटी वाले, ठीक है भाई। अच्छा, अब लिखिए भाई, इस AT को आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, मास इनटू v dv बाय ds। क्या ये भी लिखते हैं हम एक्सीलरेशन को, बिल्कुल लिखते हैं सर। कहां से आता है, ठीक है, दिस यू मस्ट नो, बट चलिए मैं फिर भी एक्सप्लेन कर देता हूं। a इज इक्वल्स टू dv अपॉन dt होता है भाई, है ना। a इज इक्वल्स टू dv अपॉन dt में हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ds ऊपर और ds नीचे। ds अपॉन dt विल बिकम व्हाट, v, इसको इधर करा, और dv बाय ds, ये रिमेनिंग रह जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको भी एक्सप्लेन करते हैं। चलिए आगे बढ़िए। आई नो दैट यू ऑल नो दिस, इट्स वेरी बेसिक, राइट। तो इसको फिर से हम लोग नोट करते हैं नीचे, F1 cos θ1 प्लस F2 cos θ2 प्लस F3 cos θ3। अब हमें क्या करना है, मैथमेटिक्स से खेलना है थोड़ा सा, तो ds को हम इधर लेके आते हैं और सभी टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं। F1 ds cos θ1 प्लस F2 ds cos θ2 प्लस F3 ds cos θ3, this is equal to mv dv. All right, so now what we have to do, integrating after integrating what we'll get, integration of F1 ds cos θ1 plus F2 ds cos θ2 plus F3 ds cos θ3 is equals to integration mv dv। and velocity कहां से कहां तक जा रही है भाई, v1 से v2 से। फॉर एग्जांपल दिस ब्लॉक m starts from there and reaches somewhere here, यहां पर इसकी वेलोसिटी मैंने कहा v2 हो गई, और इनिशियली इसकी वेलोसिटी कितनी थी भाई, इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी थी v1। तो मेरे को क्या निकालना है, चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि v2 वेलोसिटी और v1 वेलोसिटी में चेंज। देखिए अभी कैसे आएगा वो। अब चलो, f ds cos θ1 क्या लिख सकता हूं भाई मैं इसको, f वेक्टर डॉट ds वेक्टर। देखिए आप वापस से अपने वर्क डन पर पहुंच गए,
प्लस इंटीग्रेशन F1, सॉरी एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, ऑल राइट, कम ऑन, F1 ds1 F2 ds प्लस F3 ds इज इक्वल्स टू, m बाहर आ जाएगा भाई, मास कांस्टेंट है राइट, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन कर ही देते ना यहाँ पर, इसी स्टेप में कर देते हैं, v स्क्वायर बाय 2 एंड लिमिट्स गो फ्रॉम v1 टू v2। बस लास्ट स्टेप रह गया यहाँ पर, हम यहाँ पर लिख देंगे भाई वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, ठीक है। ये क्या बन जाएगा भाई W1, ये क्या बन जाएगा W2, ये क्या बन जाएगा W3, और ऐसे n नंबर ऑफ फोर्सेस यहाँ पर हो सकते थे, देखिए ठीक है। तो W1 प्लस W2 प्लस W3 डैश डैश टिल Wn, दिस इज द वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस एंड दिस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, या एक काम करते हैं इसको थोड़ा सा और क्लियर करके यहाँ पर लिख लेते हैं, एंड वी शिफ्ट दिस ऑन दिस साइड एंड वी राइट इट एज W1 plus W2 plus W3 plus dash 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 Wn is equals to half m v2 square minus half m v1 square, right? ये क्या लिख सकता हूं मैं, summation of work done by all forces, work done by all forces is equals to half m v2 square minus half m v1 square। और ये टर्म क्या होती है भाई, ये टर्म क्या होती है, ये टर्म ही काइनेटिक एनर्जी होती है, राइट। हमें कहीं पहले से नहीं पता था कि काइनेटिक एनर्जी नाम की कोई चीज होती है। व्हेन वी मैथमेटिकली केम टू अ कंक्लूजन कि हाँ भाई जो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस है वो किसके बराबर आ रहा है, कुछ इस टर्म के बराबर, तो इसको हमने नाम दे दिया काइनेटिक एनर्जी का, और हाफ mv स्क्वायर इज काइनेटिक एनर्जी, तो इसको हमने बोल दिया ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है, right? This is a pure mathematical term, so we should not confuse ourselves in this case. Work done by all forces gives us a change in kinetic energy, and this was initially what our theorem has stated. All right, okay, so let us ponder more upon our equation, work energy equation. Work done by all forces is equals to change in kinetic energy. What are these all forces? क्या क्या तरीके के, what all type of forces can be there? Let us see. So we can write work done by all the conservative forces plus work done by all the non-conservative forces plus work done by any kind of external force. This, all of these kind of works will be equal to change in kinetic energy. That means kinetic energy final minus kinetic energy initial. So I have written it in this manner so that, just a second. Let me note down these forces which we have already studied, conservative and non-conservative forces. Conservative forces will include, a gravitational force, most important, then spring force, ठीक है। इन दो के बारे में हमें इस चैप्टर में मेजरली बात करनी है। इसके अलावा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। फिर हम बात करते हैं नॉन कंजर्वेटिव में, किसकी बात कर लेते हैं हम लोग, फ्रिक्शन की। कौन से फोर्सेज होते हैं नॉन कंजर्वेटिव, जो कि पोटेंशियल एनर्जी को डिराइव नहीं कर सकते। सी ऑल दीज कंजर्वेटिव फोर्सेज आर केपेबल ऑफ डिराइविंग पोटेंशियल एनर्जी, राइट। ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो भी एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को डिराइव कर सकता है। स्प्रिंग फोर्स है, वो एक स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी को डिराइव कर सकता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को डिराइव कर सकता है। बट फ्रिक्शन फोर्स फ्रिक्शन पोटेंशियल एनर्जी को डिराइव नहीं कर सकता है। दैट इज व्हाई इट इज अ नॉन कंजर्वेटिव काइंड ऑफ फोर्स। और भी कुछ प्रॉपर्टीज होती है कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की, जो हमने ऑलरेडी पढ़ी है डिटेल में, जैसे कि एक क्लोज लूप में इसका वर्क डन कैसा आता है, 0। ये पाथ डिपेंडेंट नहीं होता है, ये सिर्फ स्टेट डिपेंडेंट होता है, यानी कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। लिख देते हैं इसको भी, डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ऑल राइट, इसको हम लोग यहां ले आते हैं, ठीक है। और ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर सिर्फ इनिशियल फाइनल पे ये पाथ डिपेंडेंट होता है, दिस इज पाथ डिपेंडेंट। फ्रिक्शन के अलावा और क्या हो सकता है भाई,
विस्कस फोर्स हो सकता है, ये भी पोटेंशियल एनर्जी को डिराइव नहीं करता। ठीक है, चलिए एक्सटर्नल फोर्स और हो सकता है, देखो टेंशन हो सकता है ना, नॉर्मल फोर्स हो सकता है, ये भी कैसे हैं, नॉन कंजर्वेटिव टाइप के फोर्स हैं, इनमें भी कोई भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इनकी वजह से नहीं होती है। ठीक है, और क्या हो सकता है, और भी कोई एक्सटर्नल फोर्स एफ आ सकता है, फोर्स एक्सटर्नल एनी काइंड ऑफ, ठीक है, एफ एक्सटर्नल फोर्स लग सकता है। चलो, ऑल राइट, दीज आर ऑल्सो नॉन कंजर्वेटिव काइंड ऑफ फोर्सेस, है ना। अब ये फाइनली हमें क्या दे देते हैं, काइनेटिक एनर्जी में चेंज के बारे में बता देते हैं। इसको हम के एफ माइनस के आई भी लिख लेते हैं कभी कभी शॉर्ट में, तो प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड, है ना, काफी जगह यूज होता है इसलिए ई हटा के हम सिर्फ के एफ और के आई भी लिख सकते हैं। ओके, सो लेट्स मूव अहेड, चलते हैं बेटा स्पेशल केसेस पर अपने, है ना, कुछ स्पेशल केसेस निकल के आते हैं हमारी वर्क एनर्जी थ्योरम से, उस पर थोड़ा पॉन्डर करते हैं। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये अभी हम देख कर आए। ठीक है, हमने वर्क को तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस को हम क्या लिख सकते हैं, है ना, अगर आपने लास्ट लेक्चर अटेंड किया है तो आप बहुत कॉन्फिडेंटली इसको बोल पाएंगे कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इसको बहुत जल्दी से रिव्यू करते हैं बेटा। फॉर एग्जांपल, अ बॉडी एट अ हाइट h1 हैज टू बी टेकन टू अ हाइट h2। ठीक है, इसको हमें अभी ऊपर लेके जाना है, इसका पाथ कहाँ है, ऊपर, फोर्स कहाँ लग रहा है इस पर, mg नीचे। तो अगर मैं वर्क डन बाय mg फोर्स की बात करूं, क्या लिख दूंगा मैं उसको, mg इंटू h2 माइनस h1 है, mg कहाँ लग रहा है, नीचे, तो एक काम करते हैं पहले ही माइनस ले लेते हैं, माइनस ऑफ mg इंटू h2 माइनस h1। पोटेंशियल एनर्जी में चेंज क्या लिख दूं मैं इसके, बताइए, mg इंटू पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है घट रही है, बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, बताओ भाई, h2 पर पहुंच जा रहा है, mg इंटू h2 माइनस h1। तो वर्क डन बाय mg क्या हो गया, नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, वर्क डन में क्या है, फोर्स नीचे डिस्प्लेसमेंट ऊपर, तो इसीलिए एक cos 180 आएगा जो कि नेगेटिव साइन में बदल जाएगा। जस्ट अ रिव्यू ऑफ दिस। ठीक है, अगर यही बॉडी ऊपर से नीचे आती है तो क्या होगा भाई, फोर्स नीचे डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, वर्क डन कैसा हो जाएगा इस केस में, पॉजिटिव। वर्क डन बाय mg कैसा हो जाएगा, बेसिकली पॉजिटिव, और पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। देखो पोटेंशियल एनर्जी घट रही है, h1 पर आ रहा है h2 से, विच इज एट द लोअर हाइट। ठीक है, तो वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी हमेशा नेगेटिव साइन के साथ लिंक्ड रहते हैं, राइट, ऑपोजिट साइन रहते हैं इनके। चलो, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस को मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस इज इक्वल्स टू डेल्टा के, लिख देते हैं इसको यहाँ पर। ठीक है, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस प्लस वर्क डन बाय एनी एक्सटर्नल फोर्स गिव्स अस डेल्टा के प्लस डेल्टा यू। बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है बेटा, है ना, इस सिंगल इक्वेशन से आप सारे क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। ये इक्वेशन है, देखो दोनों तरीके हैं इसको पकड़ पाने के, है ना। आप इस इक्वेशन को भी याद रख सकते हो कि कंजर्वेटिव फोर्सेस को इधर ले लो और या फिर पोटेंशियल एनर्जी को इस साइड ले जाओ, वन एंड द सेम थिंग है। ठीक है, नेगेटिव साइन के साथ वर्क कर जाएगा, वो ऑपोजिट साइन होता है। ठीक है भाई, तो अब इससे स्पेशल केस क्या निकलता है हमारा, देखो हम ये कहते हैं इफ वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस आर एब्सेंट, इसको अलग से पेन से लिख लेते हैं, एब्सेंट, या तो ये एब्सेंट है और वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस इज इक्वल टू 0। या तो एब्सेंट हो सकते हैं वो, या इनके द्वारा वर्क डन जो हो जाए वो 0 हो जाए। इन दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, ये दोनों 0 हो जाएंगे, तो डेल्टा के प्लस डेल्टा यू कैसा आ जाएगा भाई, 0। इसको और थोड़ा सा इलैबोरेट कर लेते हैं, डेल्टा के प्लस डेल्टा यू बराबर 0, इसको लिखते हैं भाई के फाइनल माइनस के इनिशियल प्लस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल टू 0। इनिशियल और फाइनल को एक साथ लेके जाते हैं भाई, के इनिशियल प्लस के फाइनल, सॉरी, इनिशियल और फाइनल को एक साथ लेके जाते हैं भाई, के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इज इक्वल्स टू के फाइनल प्लस यू फाइनल।
दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. मैकेनिकल एनर्जी कैसी हो जा रही है भाई? कंजर्व हो जा रही है. जो इनिशियली थी हमारी मैकेनिकल एनर्जी वही फाइनल आ रही है अगर हमारे वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स और वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एब्सेंट है या जीरो. बहुत बढ़िया बात हो गई. ये एब्सेंट और जीरो कैसे हो सकते हैं भाई? थोड़ा सा इनके सिचुएशन के बारे में भी थोड़ी सी बात करते हैं. तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट एक रिजल्ट निकल के आता है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. ठीक है भाई. मेजर हमारा जो फाइनल आउटकम है वो तो अभी भी यही निकल के आता है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक. इसी में हम स्पेशल केसेस बनाते जा रहे हैं. अगर हमें ये याद है कि भाई कंजर्वेटिव कौन सा है, फोर्स है, नॉन कंजर्वेटिव कौन सा है, तो हम इजीली एक ही फॉर्मूला याद करके भी कर सकते हैं. चलो बेटा, तो कुछ स्पेशल केसेस की बात करते हैं. स्पेशल सिचुएशंस वेयर वर्क डन इज इक्वल टू जीरो. ठीक है. ऐसे स्पेशल केसेस क्या हो सकते हैं? जैसे कि say for example this is a irregular path and a block of mass m is moving on this path. अब मैं आपसे कहता हूं इस ब्लॉक m पर जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है, जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है, इसकी वजह से वर्क डन क्या होगा? क्या हमें ये दिखाई देता है कि भाई इस पर जो ये इस पाथ पर जो ये ब्लॉक मूव कर रहा है इसका जो ds है और ये नॉर्मल है, क्या ये हर पॉइंट पर परपेंडिकुलर होने वाले हैं? बिल्कुल ठीक बात है सर. तो हम पहला केस लिखते हैं. राइट द फर्स्ट केस. Write the first case here. Just a second. First case, let us write here. Work done by normal is equals to zero in this case. क्यों होगा भाई? नॉर्मल वेक्टर और ds वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसा हो जाएगा? जीरो, जो कि हमें देता है वर्क डन. एज n इज परपेंडिकुलर टू ds. n ds cos थीटा, cos 90 गिव्स अस जीरो वैल्यू. तो ठीक है, इस तरीके से ये वर्क डन क्या हो जाएगा हमारा? जीरो हो जाएगा. और क्या केस हो सकता है भाई? सेकंड केस कुछ बनाते हैं हम लोग रिलेटेड टू पेंडुलम काइंड ऑफ सेटअप. ठीक है. स्ट्रिंग से एक बॉब को हमने हैंग किया और कुछ टाइम के बाद ये हमको यहां पर दिखाई देता है एट एन एंगल थीटा. अगर मैं आपसे पूछूं कि इस स्ट्रिंग में इस टेंशन की वजह से, इस स्ट्रिंग में इस टेंशन फोर्स की वजह से क्या हर पॉइंट पर वर्क डन इस केस में भी जीरो होगा? ठीक है. इसके पाथ कहां जा रहा है? देखो इधर हमेशा कैसा है, ये इससे परपेंडिकुलर है, यानी कि ये ds है इस केस में. ठीक है, ये ds है. हमने यहां पर भी कह दिया फर्स्ट केस की तरह हम यहां पर भी नोट कर देते हैं. सेकेंड केस, वर्क डन बाय टेंशन इज इक्वल टू जीरो. ऐसा हम क्यों कह पा रहे हैं? क्योंकि टेंशन वेक्टर और ds वेक्टर के बीच में एंगल कैसा है? 90 डिग्री. t is always perpendicular to ds in this case. करेक्ट. ये भी बात समझ में आती है हमें. चलो और आगे बढ़ते हैं. हम लोग थोड़ा सा बेटा पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ते हुए चलते हैं. वैसे हमने लास्ट चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है इसके बारे में. तो दो तरीके की पोटेंशियल एनर्जी है. पहली है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और दूसरी पोटेंशियल एनर्जी है स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है. इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले की हम लोग यहाँ पर बात नहीं करेंगे, 12th क्लास में आएगा वो हमारे पास. तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को बेटा डिनोट करना है तो कैसे करेंगे? बहुत जल्दी से देख लो इसको. मान लो ये ऑब्जेक्ट h हाइट नीचे आया. ठीक है. ये ब्लॉक था m मास का और ये ब्लॉक यहाँ पर पहुंच गया है नीचे. ठीक है. इनिशियली इसकी हाइट मान लो h2 थी और फाइनली इसकी हाइट आ गई मान लो h1 पर. ठीक है. अगर बात करता हूं, से फॉर एग्जांपल दिस ब्लॉक इज मूविंग फ्रॉम a टू b, है ना. अब मैं आपसे कहता हूं भाई पोटेंशियल एनर्जी के बारे में लिखिए. तो डेल्टा u की अगर आप वैल्यू लिखेंगे तो आप लिखेंगे, मान लो अगर ये a से b जा रहा है अभी पहले, इनिशियली इट इज मूविंग फ्रॉम a टू b, then what is the value of delta u, and when it will move from b to a, say for example we are taking it from b to a, then what is the value of potential energy? a से b जा रहे हैं हम तो हम लिखेंगे u of b minus u of a, राइट. और अगर हम b से जा रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे? u of a minus u of b. this becomes the final minus initial. ठीक है भाई. तो क्या लिख लेंगे हम इसकी वैल्यू? ub minus ua mg h1
माइनस एम जी एच टू इज इक्वल टू एम जी इंटू एच वन माइनस एच टू। एच वन माइनस एच टू, भाई एच टू नीचे है एच वन ऊपर है, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। और एच टू माइनस एच वन की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है यहाँ पर, एच के बराबर, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ एम जी एच। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, ठीक है भाई। या फिर ऐसे ऐसा कर लो यार, कंफ्यूजन है तो व्हाट वी कैन डू, एच टू माइनस एच वन लिख लो इसको, माइनस ऑफ एम जी इंटू एच टू माइनस एच वन, है ना। और फिर इसको हम एच टू माइनस एच वन को क्या लिख सकते हैं, एच, ये हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, राइट। और अगर यू ए से बी जा रहे हैं हम, तो हम क्या लिख देंगे इसको, प्लस ऑफ एम जी एच, विद द सेम मेथड दैट इज फॉलोड अब, राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं भाई। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी में हमें क्या करना है, से फॉर एग्जाम्पल a block is tied with spring, right, and we provide this block a displacement of x from its natural length। currently हमने कहा this is its natural length, ठीक है, ये क्या है इसकी नेचुरल लेंथ, राइट। यहाँ नेचुरल लेंथ से मैंने एक्स डिस्प्लेसमेंट इसको प्रोवाइड कर दिया है। अब क्या होगा, इसमें कुछ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, ऑब्वियस सी बात है कि नहीं भाई। इसको इलोंगेट करें या कंप्रेस करें, दोनों ही केसेस में एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होने वाली है इसके अंदर। अब मैं इस मोमेंट पर क्या कहूंगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी भाई, डेल्टा यू की अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर, डेल्टा यू के बारे में बताइए भाई क्या होगा, डेल्टा यू के बारे में बताइए। डेल्टा यू विल बी, यू फाइन, मैं क्या लिख सकता हूँ, हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर माइनस जीरो, ये डेल्टा यू हो जाएगी। अगर मैं नेचुरल लेंथ से बात कर रहा हूँ, तो डेल्टा यू की वैल्यू मुझे क्या मिल जाती है, हाफ के एक्स स्क्वायर। एंड इफ इन द सेम स्प्रिंग सिस्टम आई आस्क यू दैट ये एक्स थी, मान लो इसको अभी हमने मान लिया कि ये अभी एक्स वन पर है यहाँ पर, ठीक है, करंटली इट इज एट एक्स वन, एंड दिस ब्लॉक फर्दर मूव्स टू अ पोजिशन एक्स टू फ्रॉम इट्स नेचुरल लेंथ। अब ये कहां पहुंच गया है, एक्स टू पर। अब मैं आपसे कहता हूं कि भाई डेल्टा यू की वैल्यू लिख के दिखाइए मुझे, तो आप क्या लिखेंगे, डेल्टा यू विल बी नाउ यू एफ माइनस यू आई, विच इज इक्वल टू हाफ के एक्स टू स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स वन स्क्वायर, करेक्ट। तो ऐसे हम स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी को भी डिनोट कर लेते हैं। ऑलराइट, सो लेट्स मूव अहेड। चलो बेटा, वी हैव लर्नड अ लॉट टिल नाउ, लेट अस अप्लाई इट विद दिस सिंपल क्वेश्चन। इट इज सेइंग फाइंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक व्हेन इट रीचेस द बॉटम ऑफ इंक्लाइन आफ्टर रिलीजिंग फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, इसको हमने रेस्ट से छोड़ा है ना, और इसकी फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है। वेलोसिटी के बारे में हम नहीं बता पाएंगे, स्पीड हम बता सकते हैं जरूर, तो हम इसकी स्पीड को फाइनली v मान लेते हैं। ठीक है, हमने कहा कि ये जब नीचे पहुंचता है तो ये v स्पीड से पहुंच रहा है और यहाँ पर इसे रिलीज किया गया है फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं भाई, वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज कर सकते हैं डायरेक्टली। मैं बेसिक से ही चल के आपको बताता हूँ। वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू डेल्टा के प्लस डेल्टा यू। ये हमने एक इक्वेशन लिखी थी, देखो पीछे मैं दिखाता हूँ आपको, है ना, याद होगी हमें। ये तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन था, बट हमने कहा था कि फाइनली हम लोग एक ये इक्वेशन है जिसको हम यूज करेंगे 99% केसेस में, और इजीली अप्लाई हो जाती है ये, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का चेंज हम बहुत आराम से कैलकुलेट करते हैं। इट इज इजीली विजिबल टू अस। अगर स्प्रिंग कोई स्ट्रेच हो रही है तो हमें दिख रहा है कि हाँ भाई पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है उसके अंदर, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है ना। ऐसी कोई बॉडी अगर मान लो ऊपर जा रही है, अर्थ से दूर जा रही है, हमें दिख रहा है कि भाई उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, तो थोड़ा सा बस विजुअलाइजेशन इजी होता है। बाकी इक्वेशन तो दोनों यूज कर सकते हैं हम लोग। लेट अस यूज दिस इक्वेशन, है ना। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, यानी कि यहाँ पे कोई फ्रिक्शन की बात तो करी नहीं है, जो कि हमारे को इस चैप्टर में सिर्फ फ्रिक्शन से ही डील करना है। विस्कस फोर्स की कोई ऐसी बात होनी नहीं है। एक्सटर्नल फोर्स कोई भी नहीं है इस पर, सीधा सीधा रिलीज किया गया है ब्लॉक को और एमजी ही एक्ट कर रहा है इस पर। तो सीधा सीधा हमें मिल गया भाई यहां से डेल्टा के प्लस डेल्टा यू बराबर जीरो। क्या लिख सकते हैं भाई, डेल्टा के को हम फाइनल वेलोसिटी कितनी है, v, तो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू कितना है भाई, रिलीज किया है उसको जीरो, प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या लिख सकता हूं मैं, एम जी इंटू कहां आए भाई, नीचे आए हम ऊपर से, यानी कि माइनस ऑफ एच।
है कि नहीं? या फाइनल माइनस इनिशियल करके लिखना चाहते हो वैसे भी लिख सकते हो। भाई फाइनल पोटेंशियल कितनी है इसकी, है ना, सबसे नीचे आ गया ग्राउंड पर, मान लो 0 है, माइनस इनिशियली कितनी थी, mg इंटू एच के बराबर थी, तब भी माइनस एम जी एच आएगा, इज इक्वल टू 0। चलिए, तो मुझे फाइनल वेलोसिटी यहां से क्या मिल जाती है, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम जी एच, v इज इक्वल्स टू होल अंडर रूट 2gh। क्या हमें ये रिजल्ट देखकर कुछ याद आ रहा है? अगर ये पाथ जो है वो इरेगुलर ना होकर के एक स्ट्रेट लाइन भी होता, से फॉर एग्जांपल अगर ये पाथ इरेगुलर ना होके एक स्ट्रेट लाइन ही होता, तब भी क्या वेलोसिटी मेरी सेम आती? हाँ बिल्कुल सेम आती। यहां पर फ्रिक्शन नहीं है भाई, फ्रिक्शन होता अगर इसमें तो वो पाथ डिपेंडेंट हो जाता, है कि नहीं? फ्रिक्शन पाथ डिपेंडेंट हो जाता, बड़ा पाथ है तो ज्यादा फ्रिक्शन लगता अगर सेम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता, राइट? बट इस केस में वो अफेक्ट करने के लिए है ही नहीं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कोई है ही नहीं, यानी फ्रिक्शन है ही नहीं, तो हमारी वेलोसिटी जो है वो, यानी कि स्पीड जो है वो फाइनली रूट में 2gh हमें दिखाई देने लगती है। तो बेटा हमने पढ़ लिया वर्क एनर्जी के बारे में, इस थ्योरम के बारे में, काफी स्पेशल केसेस देखे, क्वेश्चन भी देखा है, बट हमें ये पता होना चाहिए कि हमें कहां पर अप्लाई करना है बेटा इस थ्योरम। ठीक है, ये एक टूल है हमारे पास, देखो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन आए, हमारे पास काइनेमैटिक्स से कुछ इक्वेशंस आई, तो ये सब टूल्स है बेटा, क्या है, टूल्स हैं ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो अब एक टूल हमारे पास और आ गया, हमें कैसे इसको चलाना है, कहाँ चलाना है, थोड़ा सा उसका आइडिया हो जाएगा ना, तो इट विल बी बेटर एंड यू इट विल क्लिक इन योर माइंड डायरेक्टली कि आपको ये अप्लाई कहाँ करना है। सो लेट्स सी, इफ इन एनी क्वेश्चन वी हैव टू डिस्कस अबाउट स्पीड और स्पीड बिकम्स इंपॉर्टेंट कंडीशन, आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं बेटा, उसके बीच में आपको कहीं स्पीड की जरूरत पड़ रही है अगर, तो ऐसी कुछ कंडीशन है बेटा हमने यहाँ पर नोट करी है। स्पीड एट अ पॉइंट इज, अगर ऐसा बोल रहा है क्वेश्चन, तो दैट डायरेक्टली मींस कि वी कैन अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम। स्पीड एट अ पॉइंट, फाइंड द पोजीशन वेयर स्पीड इज 0, हम क्या करेंगे फाइनली, काइनेटिक एनर्जी फाइनल को क्या कर देंगे, 0, फाइनल स्पीड 0 हो जाएगी। हाउ फार विल इट गो, कितनी दूर जाएगा, फाइनल वेलोसिटी कैसी कर देंगे, फाइनल स्पीड क्या कर देंगे, 0। फाइंड द मैक्सिमम एलोंगेशन इन स्ट्रिंग, मैक्सिमम एलोंगेशन कब आएगा, जब फाइनल स्पीड क्या हो जाएगी स्प्रिंग की, 0। मैक्सिमम कंप्रेशन, सेम कंडीशन। फाइंड फ्रॉम वेयर ऑब्जेक्ट विल रिटर्न, रिटर्न करने की कंडीशन, यानी कि यहां पर क्या हो जाएगी, अगेन स्पीड 0। फाइंड एम्पलीट्यूड, इस केस में भी क्या होगा, फाइनल स्ट्रेच होगा, लास्ट पोजीशन, स्पीड 0। इंक्लाइंड प्लेन पर, इंक्लाइंड प्लेन पर इरेगुलर सर्फेसेस दिखाई दे, तो बहुत ज्यादा ऑब्वियस हो जाता है कि यहाँ पर वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज होने वाला है। और ऐसी कोई कंडीशन बोले, नो लॉस ऑफ एनर्जी, है ना, तो हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का भी यूज करेंगे अगर ऐसा कोई क्वेश्चन बोलता है तो। ठीक है बेटा, तो ये कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजीज हैं जो डायरेक्टली आपको स्ट्राइक कर सकते हैं, बाकी तो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है हाउ इट इज फ्रेम। हमारे स्टेप्स क्या रहेंगे फाइनली क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, हमें सबसे पहले पार्टिकल पर लगने वाले सारे फोर्सेस को रिजॉल्व करना है, अगर हमें वर्क एनर्जी थ्योरम स्ट्राइक कर रही है कि लगनी चाहिए, सबसे पहले हम सारे फोर्सेस को रिजॉल्व कर लेंगे। ठीक है, कंपोनेंट्स ले लेंगे, पता कर लेंगे फोर्सेस के बारे में। चेक इफ एनी कंडीशन ऑफ वेलोसिटी पोजीशन इज आस्क्ड और प्रोवाइडेड, है ना, जैसा हमने पिछली स्लाइड में देखा, ऐसी कोई कंडीशन दी हुई है डायरेक्टली तो हमारा काम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और राइट वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस लिख देंगे हम, ठीक है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के द्वारा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को यूज करके हम लोग वर्क डन लिख सकते हैं। या फिर, है ना, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, कंजर्वेटिव है, नॉन कंजर्वेटिव, सारे फोर्सेस को उठा करके हम लोग ऐड कर देंगे और उनका वर्क डन लिखेंगे और अप्लाई कर देंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, तो हम मेजर पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर है हमारे लिए सारे फोर्सेस को लिस्ट कर लेना, यहां पर आकर प्रॉब्लम आती है, यहां पर आके गलती होती है। ठीक है, तो बेटा इतने इक्विप हो गए अब हम कि हम अब सीधा डायरेक्टली जेई के सवालों पर जंप करते हैं और पहला सवाल देखते हैं यहाँ पर। चलिए चलो तो बेटा मूव करते हैं अपने पहले जेई 2019 मेन के क्वेश्चन पर। A block of mass m lying on a smooth horizontal surface is attached to a spring of negligible mass and spring constant इसका हमें k के बराबर दे रखा है। The other end of the spring is fixed as shown in the figure. The block is initially at rest in its equilibrium position. Initially कहाँ है ये, अपनी natural length position में है। ठीक है, हमें दे दिया क्वेश्चन में, रेस्ट पर है। If now the block is pulled with a constant force f, क्या है, constant force है, the maximum speed of the block is, ठीक है, क्या हुआ भाई, ये रेस्ट पर है, नेचुरल लेंथ पर है, इसको एक f फोर्स से खींचना शुरू करा हमने ब्लॉक को, और हमसे कहा गया है भाई इसकी मैक्सिमम स्पीड क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप कंडीशन बताइए भाई, मैक्सिमम स्पीड की कंडीशन क्या होगी। अगर ये कंडीशन हमें पता चल गई, दैट मींस वी आर 50% अहेड इन द क्वेश्चन। देखो एफ फोर्स क्या है, कॉन्स्टेंटली लग रहा है, और जो स्प्रिंग फोर्स है जो के एक्स के बराबर होगा पीछे की साइड में, के एक्स जो स्प्रिंग फोर्स लग रहा है वो एक्स के साथ वेरी करेगा। ठीक है, ये चीज हमें क्लियर है बिल्कुल, कि x के बराबर जो स्प्रिंग फोर्स है वो जैसे जैसे यहां से x बढ़ता जाएगा
है ना, स्प्रिंग फोर्स के एक्स की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। तो जब ये एफ फोर्स जो है, जो कॉन्स्टेंटली लग रहा है, ये के एक्स के बराबर हो जाएगा, एफ फोर्स जब के एक्स के बराबर हो जाएगा, वही कंडीशन होगी आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी की। क्यों? क्योंकि उसके बाद आपका फोर्स तो कांस्टेंट है, और के एक्स क्या हो जाएगा उस केस में, फिर बड़ा हो जाएगा एफ से, यानी कि पीछे की तरफ वो स्प्रिंग जो है वो फोर्स लगाने लगेगी और वेलोसिटी को कम कर देगी। तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी की कंडीशन हो गई आपकी। ठीक है, जब तक फोर्स एफ कॉन्स्टेंटली लग रहा है और के एक्स एफ के बराबर नहीं हो जाता, तब तक वेलोसिटी बढ़ती रहेगी। और इस केस के बाद बिफोर लिख लेते हैं, बिफोर दिस कंडीशन velocity is increasing, and after f is equals to kx condition velocity will start to deteriorate। चलिए, तो कंडीशन हमें क्या मिल गई, f is equals to kx के बराबर हो जाए बस। तो यहां से x की वैल्यू मुझे क्या मिल जाती है, f अपॉन k, राइट। तो बेटा इस x लेंथ पर क्या होगा, मुझे मैक्सिमम स्पीड मिल जाएगी इस x लेंथ पर, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं भाई, डायरेक्टली क्या हम वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज कर सकते हैं, हाँ सर बिल्कुल कर सकते हैं। बट चलिए ठीक है, अभी हम इसको पूरा लिखते हैं, है ना, वील राइट दिस, हम पूरा पूरा इसको लिखेंगे, पर नेक्स्ट एक दो क्वेश्चन बाद हम थोड़ा सा स्टेप्स को जो है वो शॉर्ट करते हुए चले। चलिए पूरा लिखिए इसको अभी। वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस इज इक्वल टू डेल्टा के प्लस डेल्टा यू, राइट। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के द्वारा वर्क डन यहाँ पर क्या है, जीरो है, कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं दिख रहा। एक्सटर्नल फोर्स क्या है, एफ, और जिस डायरेक्शन में एफ है क्या उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, हाँ सर बिल्कुल है, एफ डॉट एक्स, एफ एक्स कॉस क्या हो जाएगा इसमें, कॉस जीरो की वैल्यू 1, तो नहीं लिख रहे हैं हम उसको, इज इक्वल टू, हाँ डेल्टा के बारे में बताइए, हाफ ऑफ एम इंटू वी मैक्स निकालना है मुझे, हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर माइनस इनिशियली कितनी वेलोसिटी है, जीरो, तो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो, प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बताइए भाई, फाइनल कितनी हो जाएगी, हाफ के इंटू एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स लेंथ मूव कर रहे हैं और इनिशियली क्या है हम, इक्विलिब्रियम पोजीशन यानी नेचुरल लेंथ में। तो एफ ऑफ एफ इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू क्या यहाँ से रिप्लेस कर सकता हूँ मैं डायरेक्टली, बिल्कुल, एफ इंटू एक्स की जगह रख दीजिए एफ अपॉन के इज इक्वल्स टू हाफ एम वी एम स्क्वायर, जीरो जीरो रह जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, प्लस हाफ के, एक्स की जगह फिर से प्लेस करेंगे हम एफ अपॉन के इसका होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप आगे बिल्ड करते हैं, यहाँ पर एफ स्क्वायर अपॉन के दिस इज इक्वल टू हाफ एम वी एम स्क्वायर प्लस, देखिए यहाँ पर एक के से एक के कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पर मेरे को क्या मिल रहा है, एफ स्क्वायर अपॉन 2k, इसको एलएचएस में लेके जाते हैं, क्या मिल जाएगा मुझे, एफ स्क्वायर अपॉन 2k बचेगा एलसीएम लेने के बाद, इज इक्वल टू हाफ एम वी एम स्क्वायर, राइट। ठीक है, कोई गलती तो नहीं हो रही है भाई, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल करिए, और वीएम की वैल्यू मेरे को यहां से क्या मिल जाती है, एफ स्क्वायर अपॉन एम इंटू के, वीएम स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है। और यहां से मैं फाइनली क्या लिख सकता हूं, वीएम इज इक्वल्स टू एफ अपॉन रूट एम के, क्या यही मुझे फाइनल स्पीड मिल रही है अपनी मैक्सिमम, एफ अपॉन रूट एम के, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है भाई, बी ऑप्शन, राइट। चलिए बेटा, तो मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, जेईई मेन 2020। अ स्मॉल ब्लॉक स्टार्ट स्लिपिंग डाउन फ्रॉम अ पॉइंट बी, देखो स्टार्ट स्लिपिंग सुनते ही मुझे क्या समझ में आया, स्टार्ट स्लिपिंग का मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी मुझे क्या दे रखी है इस पॉइंट पर, जीरो दे रखी है, v1 लिख लेते हैं इसको, चलो चलिए, और v2 फाइनली फ्रॉम अ पॉइंट बी एट एन इंक्लाइंड प्लेन ए बी which is making an angle theta with the horizontal दिख रहा है, BC is smooth and remaining CA part is rough, CA is rough with a coefficient of friction mu। अच्छा ठीक है, AC पार्ट यानी CA पार्ट जो है इसका coefficient of friction mu दे रखा है हमें, और जो BC पार्ट है ये कैसा है, स्मूथ है, यानी कि यहाँ पर mu कैसा है, जीरो है, कोई फ्रिक्शन नहीं है। It is found that the block comes to rest as it reaches bottom point A of the inclined plane। ठीक है, यहां से ब्लॉक मूव करना शुरू हुआ और BC स्मूथ था, AC में से फ्रिक्शन मिला, फ्रिक्शन इतना मिला 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 मिला, इसकी वेलोसिटी को रिड्यूस करते करते वो जीरो तक ले आया। ठीक है, इफ BC इज इक्वल्स टू 2AC, BC की वैल्यू 2AC के बराबर दी हुई है, तो मान लो भाई AC को मान लो किसके इक्वल, x के इक्वल, तो BC कितना हो जाएगा 2x के बराबर, पूरी लेंथ कितनी हो गई है 3x। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज गिवन बाय म्यू इक्वल टू k tan थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ओके ओके, तो हम क्या करते हैं भाई, वर्क एनर्जी थ्योरम का उपयोग करते हैं यहाँ पर, जैसा हमें ऑलरेडी पता है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस प्लस वर्क डन बाय
नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज इज इक्वल टू डेल्टा के प्लस डेल्टा यू। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस, क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स है यहाँ पर? कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। जो mg का है वर्क डन, वो हमने ऑलरेडी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में यहाँ पर ले लिया है। तो एक्सटर्नल फोर्सेस के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है और कोई एक्सटर्नल फोर्स है भी नहीं। तो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जरूर है फ्रिक्शन के बराबर, ठीक है। तो फ्रिक्शन की वैल्यू लिखिए भाई, फ्रिक्शन फोर्स के बारे में लिखिए म्यू इनटू क्या लिखेंगे भाई, मान लीजिए ब्लॉक यहाँ पर आ गया या इस जगह पर था, है ना, ये ब्लॉक यहाँ पर है, इस पर mg के कंपोनेंट्स लिखते हैं भाई, चलो ठीक है। mg के कंपोनेंट्स क्या लगेंगे, टुवर्ड्स द इंक्लाइन mg sin थीटा, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या हो जाएगा mg cos थीटा। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ऑल राइट। तो mg sin थीटा कंपोनेंट इधर लग रहा है, फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, पीछे की साइड में, और फ्रिक्शन होगा किसके इक्वल, यहां पर लिख देता हूं मैं, फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू इंटू एन के बराबर होगा। और यहाँ पर नॉर्मल फोर्स ऊपर लग रहा है और फ्रिक्शन फोर्स को यहाँ पर दिखा सकते हैं हम लोग इस तरीके से, ठीक है। मूवमेंट के ऑपोजिट लगता है ऑब्वियसली। तो म्यू एन की वैल्यू यहाँ से मुझे कितनी मिल जाएगी, म्यू इंटू एन इज ऑब्वियसली इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, इट इज बैलेंसिंग। तो म्यू एम जी कॉस थीटा, ये मिल गई मुझे फ्रिक्शन की वैल्यू, और कहाँ लगेगा, ऑपोजिट टू द मूवमेंट, वो हम डायरेक्शन साइन के साथ इसमें यूज कर लेंगे। तो म्यू एम जी कॉस थीटा, दिस इज द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। और डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, आगे की साइड में, है कि नहीं। कितने डिस्टेंस के लिए फ्रिक्शन फोर्स लगा है, सी से लेके ए तक ही तो लगा है, बी से सी तो लगा ही नहीं है। यहाँ पर तो फ्रिक्शन फोर्स है ही नहीं, इसकी वजह से कोई वर्क डन नहीं है, सिर्फ एक्स पार्ट पर लगा है। तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं मैं, एक्स से। और साथ में इन दोनों के बीच में कॉस कितना है, कॉस कितना है भाई, 180 डिग्री है। फ्रिक्शन इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, फ्रिक्शन पीछे, डिस्प्लेसमेंट आगे, तो कॉस ऑफ 180 इज -1। तो एक माइनस साइन जल्दी से आगे लगा देते हैं। थोड़ा सा बेटा स्टेप्स को हम लोग रिड्यूस करेंगे, है ना, सो दैट वी कैन सेव ऑन टाइम। डेल्टा के ही तो पूरा पूरा जीरो हो गया, देखो इनिशियली भी जीरो थी और फाइनली भी हमें क्या रखी है, वेलोसिटी रेस्ट पर आ जाता है भाई, देखो कम्स टू रेस्ट एज इट रीचेस द बॉटम। तो हम डेल्टा के को क्या कर देंगे, पूरा पूरा जीरो, कोई मतलब नहीं है। डेल्टा यू की वैल्यू लिखनी है भाई, मेन डेल्टा यू की वैल्यू लिखनी है। अब हमको डेल्टा यू की वैल्यू लिखने के लिए हमें क्या करना होगा, इसकी हाइट निकालनी होगी, यहां से यहां तक कितना नीचे आया है। कैसे निकालेंगे भाई, ये x है, ये 2x है, ये पूरा कितना हो जाएगा, 3x लेंथ हो जाएगा इंक्लाइन का, ठीक है। इसका cos कंपोनेंट इधर जाता है और sin कंपोनेंट इधर, तो क्या मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता हूं 3x, जस्ट अ सेकेंड, 3x sin थीटा, 3x sin थीटा, ये कंपोनेंट आ गया इधर, और इतना मैं नीचे आया हूं। नीचे आने का मतलब पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज होना, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या इसको, माइनस ऑफ, डायरेक्टली लिख सकते हैं हम, डायरेक्टली लिख सकते हैं भाई, कम ऑन, माइनस ऑफ एम जी इंटू कितना नीचे आए हैं हम, 3x sin थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं है, ऊपर से नीचे आते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है, नेगेटिव आ जाएगी ऑब्वियसली। चलो, तो माइनस से माइनस क्या क्या कैंसिल हो सकता है, देखते हैं। माइनस से माइनस एक कैंसिल हो रहा है, कैंसिल करने के लिए एक पेन मैं अलग यूज कर लेता हूं, अदरवाइज यू कैन फेस सम प्रॉब्लम। यहाँ पर मुझे क्या मिल जाता है, एक्स से एक्स भी कैंसिल हो जाता है, तो म्यू की वैल्यू मिलती है मुझे 3 टाइम्स ऑफ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, which gives me mu is equals to 3 tan theta, and what is asked to me, mu is equals to k tan theta, so k is equals to 3। इंटीजर टाइप में आया था बेटा ये क्वेश्चन, इसका आंसर यहां पर क्या लिख देंगे हम लोग, 3। ओके, तो लेट्स मूव अहेड। चलिए बेटा आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जेई एडवांस 2013 का क्वेश्चन है। अ स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास 1 kg इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट एट द टॉप ऑफ द रफ ट्रैक, ठीक है। यहां से हमने एक 1 kg के ब्लॉक को, जो कि एक रफ ट्रैक है, उस पर रिलीज किया। द ट्रैक इज सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 40 मीटर, ठीक है, रेडियस हमें 40 मीटर दे दिया। द ब्लॉक स्लाइड्स अलोंग द ट्रैक विदाउट टॉपलिंग एंड अ फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट्स ऑन इट इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द इंस्टेंट, ऑब्वियसली वेलोसिटी से ऑपोजिट ही एक्ट करना था। द वर्क डन इन ओवरकमिंग द फ्रिक्शन अप टू द पॉइंट क्यू पॉइंट तक जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है उसके द्वारा वर्क डन जो किया जा रहा है इन ओवरकमिंग द फ्रिक्शन फोर्स अप टू पॉइंट क्यू इज एज शोन 150 जूल दे रखा है हमको, ठीक है भाई। वर्क डन डायरेक्टली दिया हुआ है हमें, तो ऑब्वियसली बात है वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज करना ही पड़ेगा यहाँ पर हमको। हमने जल्दी से लिख लिया यहाँ पर, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव, वर्क डन बाय एक्सटर्नल,
इज इक्वल्स टू डेल्टा के प्लस डेल्टा यू। ठीक है, बहुत जल्दी से हमने ये इक्वेशन यहाँ पर नोट डाउन कर ली। अच्छा, एक्सटर्नल फोर्स क्या है भाई? कोई एक्सटर्नल फोर्स है क्या? नहीं। हमने इसको कहां से छोड़ा है भाई? इट इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, दैट मीन्स v एट दिस पॉइंट इज इक्वल टू 0, राइट। तो कोई एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पर एक्ट नहीं कर रहा है, mg फोर्स एक्ट कर रहा है, वो हम उसकी पोटेंशियल एनर्जी ऑब्वियसली यहाँ पर कंसिडर कर लेंगे। तो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की बात करूं अगर मैं, तो फ्रिक्शन की वजह से वर्क डन मुझे क्या दे रखा है? वर्क डन इन ओवरकमिंग द फ्रिक्शन अप टू द पॉइंट q एज शोन इन द फिगर 150 जूल्स, यानी कि फ्रिक्शन के द्वारा वर्क डन कितना हो जाएगा? माइनस 150 जूल, राइट। ठीक है, फ्रिक्शन ओवरकम करने के लिए मुझे कितना करना पड़ा? 150, तो फ्रिक्शन के द्वारा कितना हो रहा था? माइनस 150 जूल के बराबर। ठीक है, मैंने इतना नोट कर लिया, वर्क डन बाय फ्रिक्शन। ठीक है, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी में चेंज की बात करूं अगर मैं, तो इनिशियल में 0 दी हुई थी, फाइनल मैंने लिख ली हाफ m इंटू वी स्क्वायर। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी में चेंज की बात करनी है मुझे, तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा यहाँ पर? कितना डिस्टेंस मैं नीचे आया हूं। कैसे निकाल लू मैं? ये 30 डिग्री है, ये आर है, तो ये भी आर के बराबर है, सर्कुलर ट्रैक है। ठीक है, अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं तो ये 30 है, ये 60 डिग्री है, तो ये आर का कौन सा कॉम्पोनेंट आएगा? आर कॉस 60। आर की वैल्यू में कितनी देंगे? 40। ठीक है, तो मैं लिख लूंगा भाई आर कॉस कॉस 60, यानी कि आर बाय 2 ही रह गया ना यहाँ पर, इज इक्वल टू आर बाय 2। आर बाय 2 की वैल्यू कितनी हुई? 20, सीधा सीधा। तो 20 मीटर में नीचे आया हूं, है कि नहीं? 20 मीटर में हाइट नीचे आया हूं, और मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा इसे? mg के साथ। और कैसा साइन लूंगा इसमें? भाई फाइनल कहां हूं मैं? नीचे हूं। पहले पहले हाइट मेरी ज्यादा थी, अब मैं हाइट कितने आ गया? नीचे आ गया, तो माइनस ऑफ mg इंटू 20 से मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं भाई। क्या क्या चीज यहां पर हमें मिल पा रही है? माइनस ऑफ 150 इज इक्वल्स टू हाफ, 1 है भाई मास, और वी स्क्वायर, सीधा ये रह जाता है, माइनस 1 मास है, जी हो गया 10 इंटू 2, 200, है कि नहीं? 1 इंटू 10 इंटू 200। ठीक है, तो हाफ वी स्क्वायर गिव्स मी 50, वी स्क्वायर गिव्स मी 100, वी कम्स आउट टू बी 10। मुझे ये कहां पर वेलोसिटी मिली है भाई? क्यू पॉइंट पर। क्यू पॉइंट पर मुझे वी की वैल्यू मिल गई 10 के बराबर। चलिए और बताइए क्या चीज इसमें निकालनी है? द मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल रिएक्शन दैट एक्ट्स ऑन द ब्लॉक एट पॉइंट क्यू। अब क्यू पॉइंट पर नॉर्मल रिएक्शन कैसे एक्ट कर रहा है? क्यू पॉइंट पर पहले ये देखें, इस ब्लॉक पर कौन कौन से फोर्सेज एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा डायग्राम ऐसा बना लेता हूँ ताकि आपको देखने लगे। जस्ट सेकेंड, ये पॉइंट बनाया मैंने यहाँ पर क्यू। ठीक है, इस पे क्या क्या फोर्सेज लग रहे हैं? एक फोर्स लग रहा है नॉर्मल, ठीक है, इस ब्लॉक पर, ये एक ब्लॉक है। ठीक है, एक इस पर लग रहा होगा नीचे की तरफ mg फोर्स, है कि नहीं? अब सर्कुलर ट्रैक में है, तो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स कौन कौन दे रहे होंगे मिला के? एक नॉर्मल और एक mg का एक कंपोनेंट भी तो आएगा यहाँ पर, तो वो mg का कंपोनेंट भाई हमें निकालना पड़ेगा ऑब्वियसली। mg के दो कंपोनेंट होंगे, एक टेंजेंट की तरफ निकालेंगे हम, और एक रेडियल निकालेंगे। तो जो रेडियल कंपोनेंट है वो हमारा एक्सेल सेंट्रीपिटल एक्सेल का पार्ट बनेगा, यानी कि नॉर्मल के साथ कंबाइन हो जाएगा। तो अब देखते हैं इसमें क्या होने वाला है। mg का कंपोनेंट क्या लिख सकते हैं हम इधर? एंगल निकालना पड़ेगा ना हमको। ये mg फोर्स है ना, ये नॉर्मल फोर्स है, ये एंगल 60 था, ये एंगल कितना हो जाएगा? 30 डिग्री, राइट। ये यहाँ से mg का एक कंपोनेंट आएगा, कैसा कंपोनेंट आएगा? ये वाला एंगल आ जाएगा आपका फिर से 30, एंड दिस इज परपेंडिकुलर 60, एंड दिस अगेन इज 30 डिग्री। तो mg का एक cos 30 वाला कंपोनेंट आ रहा है टुवर्ड्स द टैंजेंट। ठीक है बेटा, ये एंगल की वर्किंग थोड़ी सी तो करनी पड़ेगी ना हमको। mg का साइन कंपोनेंट आ रहा है टुवर्ड्स द रेडियस। चलिए, तो अब लिखिए भाई, क्या इक्वेशन लिखते हैं हम सर्कुलर मोशन में? फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स n टुवर्ड्स द सेंटर माइनस mg साइन 30, mg साइन 30 इज इक्वल्स टू m v स्क्वायर अपॉन r। v की वैल्यू क्या हमें पता है, r की वैल्यू क्या हमें पता है? सारी वैल्यूज पता है, सिर्फ नॉर्मली तो निकालना है यहाँ पर। n माइनस 1 इंटू जी 10 बाई 2 5 इज इक्वल्स टू मास इज 1 इंटू वी स्क्वायर इज 10 इंटू 10 अपॉन रेडियस इज 40। क्या मिल जाता है भाई यहाँ से हमें? n इज इक्वल्स टू 5 प्लस 4 इंटू, ये भी कर दीजिए भाई सॉल्व, 2.5
तो यहां से मुझे एन नॉर्मल फोर्स की वैल्यू कितनी मिलती है 7.5 न्यूटन के बराबर। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है मेरे यहाँ पर? ए ऑप्शन, दिस इज द करेक्ट आंसर। Okay, beta. So let's move ahead to another question of JEE Advanced 2020. A student skates up a ramp that makes an angle 30 degree with the horizontal. ठीक है, यहाँ पर बेटा एक स्टूडेंट है, आप ही के जैसे एक स्टूडेंट होंगे, वो स्केट कर रहे हैं। ठीक है, ये इनके लेग्स में देखो स्केट्स हैं। ठीक है, और ये स्केट करते हुए रैम्प के ऊपर जा रहे हैं। He starts at the bottom of the ramp with a speed v0. इनिशियली इसकी स्पीड हमें क्या दे रखी है बेटा? v0 दे रखी है। एंड wants to turn around over a semi circular path of radius r. ये देखो बेटा, यहां से जाते हुए जाने के बाद ये इस पॉइंट से एक सेमी सर्कुलर आर्क में टर्न करना चाहते हैं, which he or she reaches of radius r, during which he or she reaches a maximum height h at point y. ठीक है बेटा, ये y पॉइंट जो है ये ग्राउंड से कितना ऊपर है? h हाइट। ठीक है, इसको 3D में इमेजिन करें, h हाइट पर अगर ये प्लेन को जिस तरीके से चल रहा है, ये y पॉइंट यहाँ है और x पॉइंट कुछ यहाँ है। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पर थोड़ा सा आपके लिए और क्लियर करके बना दूं, ठीक है, साइड व्यू अगर हम इसका देखते हैं तो कुछ ऐसा दिखता है। x पॉइंट यहाँ पर दिखेगा, y पॉइंट यहाँ पर दिखेगा, और ये एक सेमी सर्कुलर ट्रैक यहाँ से बनाता हुआ एक z पॉइंट पर आएगा, जो कि x और z आमने सामने बिल्कुल हमें दिखाई देने वाले हैं। तो ये जो हाइट है h, ये है x की हाइट, और ये h2 जो है ये है y की हाइट। तो मैक्सिमम हाइट कहां पर पहुंच रहा है? y पॉइंट पर। बिल्कुल ठीक है, वही लिखा है उसने। Assume that the energy loss is negligible and the force required for this turn at the highest point is provided by his or her weight only. ठीक है, एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है, लेकिन मैंने आपसे बेटा कहा भी था, है ना, अगर ऐसा कोई वर्ड हमें दिखाई देता है तो हमको कहीं ना कहीं वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज करना है। और फोर्स रिक्वायर्ड, ठीक है, ये कह रहे हैं कि इस सर्कुलर टर्न पर, है ना, जो फोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ इसके वेट की वजह से लग रहा है ना। सर्कुलर टर्न पे घूमने के लिए हमें कुछ ना कुछ सेंट्रीपिटल फोर्स की बेटा जरूरत पड़ेगी, ऑब्वियस सी बात है ना। तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स ये लोग क्या कह रहे हैं, कहां से मिल रहा है हमें? फॉर एग्जाम्पल अगर ये बॉडी यहाँ पर है तो इस पर इधर लगेगा mg का कौन सा कॉम्पोनेंट? mg साइन ऑफ 30 डिग्री, राइट। और इस तरफ डाउनवर्ड्स कौन सा लगेगा इसमें? देखो भाई, mg जो है इस ब्लॉक पर कहीं यहां पर लग रहा था ना। ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन की तरफ क्या आ गया? mg साइन 30, और परपेंडिकुलर टू प्लेन क्या आ जाएगा? mg cos 30 डिग्री। करेक्ट है भाई, साइन कंपोनेंट आ गया अलोंग द प्लेन, कॉस कंपोनेंट आ गया टुवर्ड्स द प्लेन। तो ये कह रहे हैं इस वेट की वजह से ही मुझे सर्कुलर टर्न पर टर्न करने को मिल रहा है, क्योंकि देखो बेटा फ्रिक्शन तो है नहीं, यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं है, तो कोई ना कोई फोर्स तो चाहिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स बनेगा और इस रोटेशन को अंजाम देगा, यानी कि इस रोटेशन में हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये फोर्स हो गया। अब हम फाइनली क्या कर सकते हैं बेटा? एनर्जी कंजर्वेशन की बात कर सकते हैं। यहाँ पर वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेज इज इक्वल टू डेल्टा के प्लस डेल्टा यू। अब मैं बेटा आपको पहले ही लिखवा सकता था डायरेक्टली कि डेल्टा के प्लस डेल्टा यू यहाँ पर 0 है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड है, क्योंकि हमें सीधा सीधा दिख रहा था कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। उसने सिर्फ v वेलोसिटी यहां से ली है v0 और ऊपर चलता चला गया है और सीधा टर्न कर लिया इसने यहाँ पर, बस इतना हुआ है। ठीक है, तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं, कोई नॉन कंजर्वेटिव नहीं, जो mg की वजह से है वो हमने पोटेंशियल एनर्जी में पहले ही सोल्व कर लिया। हम डायरेक्टली बेटा के आई प्लस यू आई इज इक्वल टू के एफ प्लस यू एफ मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन भी लगा सकते थे। ठीक है, अब लगा लेते हैं, कोई बात नहीं, आपको समझा दिया हमने। तो के आई की वैल्यू क्या है भाई? इनिशियली क्या थी काइनेटिक एनर्जी? हाफ एम वी नॉट स्क्वायर प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी भाई? 0 हो जाएगी क्योंकि ग्राउंड पर है हम। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाफ एम वी, हमें नहीं पता भाई कितना है कि नहीं, हमें कुछ वी नॉट और इसमें रिलेशन तो पूछ रहा है, प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बताइए जल्दी से। ये हाइट h है, y पॉइंट पर हाइट कितनी है? h है, और नीचे से ऊपर गए हम, ठीक है, हाइट राइज हुई है तो पॉजिटिव में आ जाएगा। mg के द्वारा पोटेंशियल एनर्जी जो मिलेगी हमें वो mg h मिल जाएगी। ठीक है भाई, अब यहाँ पे देखो जो हमें ऑप्शन दे रखे हैं उसमें कहीं v का जिक्र तो किया ही नहीं है ना, तो हमें v को रिप्लेस करना पड़ेगा g और r के टर्म्स में कुछ। उसके लिए हमें कहां से इक्वेशन मिलेगी, है ना, उसके लिए थोड़ा सा आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा सर्कुलर मोशन के बारे में। जो ये ट्रैक है एक्स वाई और जेड वाला, इसमें आपको ये दिख रहा है कि इसके वेट की वजह से एक फोर्स लग रहा है जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स बन रहा है, यानी कि मैं डायरेक्टली क्या कह सकता हूं, इन ट्रैक एक्स वाई जी कॉमा एम जी साइन 30
एम जी साइन 30 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा, एम वी स्क्वायर अपॉन रेडियस के इक्वल हो जाएगा कि नहीं भाई। ये जो फोर्स है ये सेंट्रीपिटल फोर्स बन गया, यहां से एम और एम कैंसिल है ना, वी स्क्वायर की वैल्यू मेरे को यहां से क्या मिल जाती है, आर जी बाय 2 साइन 30 डिग्री इज 2। वी स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्टली हम यहाँ पर प्लेस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ एम इंटू आर जी बाई 2, वी स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्टली रख दी, प्लस एम जी एच, जो कैंसिल हो रहा है बेटा जल्दी कैंसिल कर देते हैं उसको। और वी नॉट स्क्वायर की वैल्यू मेरे को यहाँ से क्या मिल जाती है डायरेक्टली, वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, आर जी बाई 2 और 2 उधर चला जाएगा, कितना मिल जाएगा मेरे को, आर जी बाई 2 तो वैसे ही रहा, प्लस 2GH। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, वी नॉट स्क्वायर माइनस 2GH, अगर इसको इधर ले आएंगे तो पहला ऑप्शन देखो यहां से मैच कर जाएगा हमारा, बिल्कुल ठीक है। ऑल राइट, अब और क्या बोला है हमसे, सेकंड ऑप्शन तो गलत हो गया, खत्म हो गया। द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड एट पॉइंट्स x एंड z इज 0। ये कह रहा है बेटा x और z पर क्या सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू 0 होगी, क्यों होगी बेटा, यहां पर तो आपने सर्कुलर टर्न करना शुरू कर दिया है ना, सर्कुलर टर्न करने के लिए हमें क्या चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स तो चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स 0 कैसे हो सकता है उस पॉइंट पर, तो ये वाला पॉइंट भी क्या हो जाएगा बेटा, गलत हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। डी पॉइंट क्या कहता है, सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड इज मैक्सिमम एट पॉइंट्स x एंड z। ये बात बेटा बिल्कुल ठीक है, क्योंकि देखो बेटा x के बाद जब आप आगे बढ़ोगे तो क्या होगा, आपकी पोटेंशियल एनर्जी राइज होगी। देखो हमने यहाँ लिखा भी है, x क्या है लोअर हाइट पर है, y क्या है हायर हाइट पर, तो यहाँ पर आप जाओगे तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी और धीरे धीरे आपकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। तो यहां से यहां जाने में v कैसी हो रही है, डिक्रीज हो रही है कि नहीं। और सर्कुलर टर्न वाले पॉइंट्स में सबसे ज्यादा वेलोसिटी कहां मिलेगी आपको, x पर, क्योंकि ये स्टार्टिंग पॉइंट है, x पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट है और z पॉइंट भी इसके बिल्कुल ठीक ऑपोजिट स्टार्टिंग पॉइंट है, तो यहां पर आपको वेलोसिटीज क्या मिल जाएंगी, मैक्सिमम। तो ये पॉइंट बेटा क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा। तो ये मल्टीपल चॉइस करेक्ट क्वेश्चन था, ए और डी करेक्ट ऑप्शन। बहुत बढ़िया। चलिए बेटा एक जेई का एडवांस का क्वेश्चन और देखते हैं। ओके बेटा, सो लेट्स गो ahead with one more JEE advanced question. A block of mass 0.18 kg is attached to a spring of force constant 2 Newton per meter. The coefficient of friction between the block and the floor is given to be 0.1. Initially the block is at rest, ठीक है, and the spring is unstretched. Okay, that means it is in its natural length and the block is at rest. An impulse is given to the block as shown in the figure. Okay, ठीक है, the block slides a distance 0.06 meters, यानी कि यहां से कुछ डिस्टेंस x मूव करा जो कि है 0.06 मीटर एंड कम्स टू रेस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, इतना चलने के बाद ये ब्लॉक जो है वो रेस्ट में आ जाता है, यानी कि फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाती है इसकी, 0v2 की वैल्यू। ऑलराइट, द इनिशियल वेलोसिटी ब्लॉक इन मीटर पर सेकंड इज v इक्वल टू दिस देन n। ठीक है भाई, बहुत ही इजी सवाल है, इसमें बस एक कैच है, ये इन्होंने दे रखा है एन इंपल्स इज गिवन टू द ब्लॉक एज शोन इन द फिगर। देखो बेटा, अगर यहां पर इन्होंने एक कांस्टेंट फोर्स F बना दिया होता, अगर एक कांस्टेंट फोर्स F बना दिया होता तो हम इसे कहां पर काउंट कर लेते, हम अपने वर्क एनर्जी थ्योरम को लिख लेते हैं। चलो बेटा पहले, है ना, आपको साथ में समझाता जाता हूं। वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस इज इक्वल्स टू डेल्टा K प्लस डेल्टा U। बेटा जो ओरिजिनल आपकी वर्क एनर्जी इक्वेशन है ना, उसमें बस ये डेल्टा U का टर्म इधर आ जाता है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस बन के, ये U इधर आएगा तो माइनस ऑफ U बन जाएगा और माइनस ऑफ U क्या हो जाता है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। उसको हम पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में ले ले रहे हैं, हमें थोड़ा सा इजी रहता है बिकॉज वी कैन विजुअलाइज इजीली। मैं फिर से बोल रहा हूँ आपको, इस स्प्रिंग में अगर मैं आपसे पूछूं जब ये कंप्रेस हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी, आपको खुद समझ में आ रहा है, इसमें स्टोर होने लगेगी, तो हम इसकी वैल्यू इजीली लिख सकते हैं। बस यही एक, और कुछ भी नहीं है बेटा, अगर आप उसमें कंफर्टेबल है वैसे भी कर सकते हैं, नो। ठीक है, हम कहां पर थे, तो हम आपसे कह रहे थे बेटा ये इंपल्स की बात करते हैं हम लोग। अगर यहाँ एक F कांस्टेंट दिया होता तो यहाँ एक्सटर्नल फोर्स माना जाता है इस F को, है ना, इस F को एक एक्सटर्नल फोर्स माना जाता और इसको x से मल्टीप्लाई किया जाता तो इसका वर्क डन आता। बट यहाँ पर क्या है, वो F एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, वो एक इंपल्स है। इंपल्स का मतलब आप समझ रहे हैं बेटा, इंपल्स का मतलब आप समझिए कि मैंने इस ब्लॉक को बस एक छोटे से यानी वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए हिट करा तो इस पर एक इनिशियल वेलोसिटी इसे मिल गई होगी आगे जाने के लिए।
It is not a constant force that I am providing the block. It is just the initial velocity that I am providing the block, and that too for a very small instant of time. I'm just clicking the block and it will move ahead to a distance x. All right, ठीक है. और अगर इस बात का आपको और अच्छा थ्योरेटिकल एक पैराग्राफ चाहिए तो आप एनसीईआरटी की अपनी बुक ओपन करें, है ना, और चैप्टर नंबर 4 लॉज ऑफ मोशन में जाएं और वहां पर पढ़ें इसके बारे में, दैट द बॉडी आफ्टर पार्टिंग फ्रॉम अनदर बॉडी लूजेस द मेमोरी ऑफ फोर्स और एक्सेलरेशन बीइंग प्रोवाइडेड बाय द प्रीवियस बॉडी. राइट, इस तरह का एक स्टेटमेंट लिखा है वहां कि अगर मैं इस बॉडी को एक फोर्स प्रोवाइड कर रहा हूं जस्ट फॉर दैट स्मॉल इंस्टेंट ऑफ टाइम, तो इसके पास उस फोर्स की मेमोरी नहीं रहेगी जब ये मेरे से पार्ट कर चुका होगा. सिर्फ वो वेलोसिटी लेकर ये मूव कर जाएगा. इट विल नॉट हैव एनी हिस्ट्री ऑफ द एक्सेलरेशन और द फोर्स बीइंग प्रोवाइडेड बाय द बॉडी फ्रॉम विच इट इज पार्टिंग. बहुत बहुत ध्यान से बेटा इस चीज को समझे. तो इसीलिए इंपल्स वर्ड का यूज किया है बेटा. ये एडवांस का क्वेश्चन पेपर है, ये ऐसे, है ना, कोई भी प्रोफेसर नहीं, इसको वर्ल्ड बेस्ट प्रोफेसर इसको अगर सेट कर रहे हैं, दैट मींस दे विल हैव एवरीथिंग इन देयर माइंड बिफोर राइटिंग एनी टर्म. सो एन इंपल्स इज गिवन टू द ब्लॉक. ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हमें ये समझ में आ गया कि एक्सटर्नल फोर्स की वजह से वर्क डन क्या हो जाएगा बेटा, जीरो. कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, सिर्फ एक इनिशियल वेलोसिटी दी है. तो मैं इसकी v1 को क्या जीरो लिखूंगा? नहीं, इसकी v1 की कोई ना कोई वैल्यू जरूर है, तभी इसको इनिशियल वेलोसिटी देकर आगे बढ़ाया गया. तो जब ये इनिशियली ब्लॉक आपको दिया, इनिशियली ब्लॉक इज एट रेस्ट एंड स्प्रिंग इज अनस्ट्रेच्ड, यानी कि नेचुरल लेंथ कंडीशन की बात होती है. चलो आगे बढ़ते हैं. तो अब नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की वजह से वर्क डन लिखो भाई. फ्रिक्शन की वजह से क्या वर्क डन है, क्या दिखाई देता है हमें? फ्रिक्शन फोर्स की पहले बात करते हैं. म्यू इनटू, है ना, क्या है भाई, इस ब्लॉक का मास क्या है? 0.18 kg है. इसको बना लेते हैं, चलो एक बार नीचे बना लेते हैं यहाँ पर, है ना. इस मास को लिख लेते हैं हम 0.18 और इस पर एक mg फोर्स नीचे लगा देते हैं. ठीक है, और एक नॉर्मल फोर्स ऊपर लगा देते हैं. तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? म्यू इंटू एन के बराबर, यानी कि म्यू इंटू mg के बराबर. कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? म्यू की भी वैल्यू पता है आपको, mg की भी पता है, कोई दिक्कत नहीं. पहले लिख लेते हैं. म्यू mg तो हो गया हमारा फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट कहाँ है भाई? आगे x है. फ्रिक्शन फोर्स तो ऑब्वियसली मूवमेंट के हमेशा ऑपोजिट लगेगा. ब्लॉक आगे जा रहा है तो फ्रिक्शन कहाँ लग रहा होगा? पीछे की साइड में. तो फ्रिक्शन पीछे, डिस्प्लेसमेंट आगे. एंगल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री. तो माइनस का साइन आ जाएगा. फोर्स डिस्प्लेसमेंट cos 180 माइनस ओके इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी में चेंज लिखिए बेटा. फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है हमारे पास? जीरो. हाफ m इंटू जीरो का स्क्वायर. क्यों? क्योंकि फाइनल कंप्रेस कंडीशन में देखिए, द ब्लॉक स्लाइड्स अ डिस्टेंस इतना एंड कम्स टू रेस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम. तो जब रेस्ट पर आ गए फाइनली, तो फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई. माइनस हाफ m इंटू v1 का स्क्वायर, जिसको मैंने v मान लिया, चलो ठीक है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी में क्या चेंज है? इनिशियली नेचुरल लेंथ पर था तो ui तो जीरो होगा, uf क्या होगा? हाफ इंटू k इंटू एक्स स्क्वायर, जो x हमने स्ट्रेच लेंथ इसकी मानी है. मानी क्या है? वो ऑलरेडी दिया भी है हमें क्वेश्चन में, 0.6. तो बेटा हमें सारी वैल्यूज यहाँ पता है, हमको सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना है? v की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर. ठीक है, अब रीअरेंज करेंगे टर्म्स को. इन टर्म्स को हम लोग रीअरेंज कर लेंगे, है कि नहीं? इन टर्म्स को हम रीअरेंज कर लेते हैं. तो v की वैल्यू मुझे यहां से क्या मिलती है? मुझे यहां से मिलता है हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू म्यू एम जी एक्स प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर. राइट, यहां से मुझे ये पता चलता है कि v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 म्यू एम जी एक्स प्लस के एक्स स्क्वायर, और m से डिवाइड होना था, इसको भी डिवाइड कर दो और इसको भी डिवाइड कर दो. तो फाइनली यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि मेरी v की वैल्यू कितनी आ जाती है? होल अंडर रूट ऑफ 2 म्यू जी एक्स प्लस के एक्स स्क्वायर अपॉन. ठीक है बेटा, बस आपको वैल्यूज पुट करने और सॉल्व कर लेना है. सॉल्व करते हैं इसको, यहां से हम सॉल्व करते हैं इसको. वैल्यूज पुट करने के बाद तो v की वैल्यू आ जाती है 4/10. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसको हमें कंपेयर किससे करना है? n/10 से. तो n की वैल्यू यहाँ से मुझे कितनी मिल जाती है? 4 के बराबर. इंटीजर टाइप क्वेश्चन था बेटा, n की वैल्यू हम यहाँ पर प्लेस कर देंगे 4. ओके, this lecture till this point only, and we'll meet in the next lecture surely.
Till then, I have given you some homework in HC Verma and Erodo book. So some questions are given to you on Telegram. You can surely ask if any doubt is there. And enjoy your day. Right? If you will have the small concepts of physics, you will surely fall in love with physics. All right. तो पढ़ते रहें. All the very best. Enjoy.